as Arunima, who is IT Delhi alumnus. And today she'll be going to teach us how to do Surya Namaskar in a correct posture, followed by diet session. So let's greet the sun together and relax and chill. So please enjoy the session. So I think Arunima, you can move forward with the session. Thank you so much, ma'am, for the introduction. Yeah. Before we start, I would want to request, since this is a yoga session and a practical session, we're going to do Surya Namaskar. So please अपनी video on कर ले so that I'm able to see your beautiful faces. अपनी video on करें. You joined here for practicing. Uh, please switch on your videos. Yes. Nice, nice. Nice to see such smiling faces. All right, so let's begin. We will be sitting in a cross-legged posture. Let's do centering first. अपना ध्यान इधर उधर जो बटा हुआ है उसको वापस लेकर आए. So sit in a cross-legged posture. Sit comfortably. अगर आप cross-legged में comfortable हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं. If you are comfortable in Ardha Siddhasana, that is the left heel to the perineum, right leg in front. This is a more stable posture to sit in when you're sitting on the ground. Okay, just sit here. Take off your spectacles. Close your eyes. Keep your palms on your knees. Just take a long, deep breath. Inhale. And as you exhale, relax your breath. Connect with your breath. Watch your breath move in. Watch your breath move out of your body. As you inhale, feel that breath moving into your nostrils, into your lungs. It's pushing the diaphragm, and it's pushing the belly out. And when you're breathing out, become one with that breath. Feel that breath moving out of your body, out from the lungs, out through the nostrils. Try to observe the quality of your breath. क्या आपकी सांस ठंडी है जब आप अंदर ले रहे हैं और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या वो नर्म और गर्म हो गई है? Observe your breath. Keep your eyes closed and feel your breath. Connect with your breath. थोड़ी देर के लिए जो भी मन में विचार है उसको साइड में रख दे. Just bring your awareness to your breath. And let us set an intention for the practice today. Let us set an intention that I am going to keep my awareness to my body and my breath throughout the session. I will keep my awareness to the body and the breath throughout the session. With that intention in our hearts, let us chant Om 3 times, followed by the Guru Mantra. Inhale, bring your palms in Dhyan Mudra. Om. 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 Join your palms together, bow your head down.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Right, rub your palms, generate heat, cup your eyes, धीरे धीरे हथेलियों को दूर लेकर जाए and look into your palms with a big smile on your face. Namaste. Let us stand up for the warm up today. Let us stand up for the warm up. Let's do on the spot marching. अपनी जगह पे let's just activate the body. हाथों पैरों को ढीला छोड़ें. Activate the body. Marching on the place. Feel your feet touching the ground, the soles of the feet touching the ground one by one. Become aware of your calf muscles, your knees, your thighs. Become aware of whatever is happening in your body right now. See, your back is also engaged. Your hands are engaged. Continue doing. All right, let's do this for 10 more counts. And let's bring our knees up. So bring your knees up. High knees. 2, 3, 4. Bring your knees higher up. 7, 8, 9. And last count. All right, just take a breath. And let's do full arm rotation now. तो दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, ऊपर की ओर उठाएं. Take them back. Fully rotate. Bring them back to the front. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Rise up. Take your arms up towards the sky. Biceps touching the ears. Up and back. I request all the participants to please switch on your cameras. I really would love to see your faces and see how you're doing, so that if there is any necessary correction I need to make, I can tell you. All right, let's go for reverse. पीछे लेके जाएं हाथों को, आगे लेकर आएं. Not just moving the arms. Always remind yourself of the intention that you've set. Keep your awareness to your body. So जो भी body part हम move कर रहे हैं, take your awareness to that. So right now you're moving your shoulders, you're activating the shoulders. Feel your shoulders and feel your shoulder blades, your arms. All right, relax. Just take a breath, inhale and exhale. Let's stretch ourselves up. ताड़ासन करेंगे. दोनों पैरों को साथ में लेकर आएं. Interlock your fingers. Take your hands up and come up on your toes. Stretch yourself up. अच्छे से stretch करें. Keep breathing. 5 counts here. 4, 3, 2, and 1. Come back down. Relax. Just take a breath. दोनों पैरों के बीच में shoulder width distance. Keep your hands on your waist. Let's take a backward bend and a forward fold. So always remember, yoga सबके लिए है, लेकिन you know best what is your condition of the body. So if you're having chronic backache problem, तो आप आगे की ओर ना झुकें. If you're having chronic neck problem, तो गर्दन आगे की ओर ना झुकाएं. अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, तो डीप बैक बेंड्स में ना जाएं. अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है, तो घुटने फोल्ड करके जो बैठने वाले आसन हैं, उनको अवॉइड करें. Continue doing along with me.
Let's do this for 5 more counts. All throughout the session, please take precaution. और जहां भी आपको लगे you want to take rest, you're completely free to take rest and get back to the practice when you're feeling okay. Let's do this 2 more times. Inhale, exhale, inhale, and exhale. Very good. Come back. Just take a breath. Inhale and exhale. All right, stand with your feet apart. Take the right hand up. Exhale and bend over to the left side. Inhale up. Bring the right palm down. Left hand up. Slide down. Go towards the right side. Let's do this 2 more times. Left and right. Try to go deeper. Left and right. Let's do this 2 more times. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Once more. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. All right, relax. Just take a breath. Inhale and exhale. दोनों हाथ सामने कटी चक्रासन करेंगे. We did this yesterday. Exhale to twist back. Inhale forward. Exhale back. Inhale forward. Use your breath to twist more. And follow your hand. जहां आपका हाथ जा रहा है उसकी तरफ देखिए. तो केवल बॉडी ही नहीं, आपकी गर्दन भी जाएगी पीछे. Continue doing. Feel the twist in your body. Use your exhalation to twist more. Very good. 3 more counts. 2 more. Last count. All right, come back up. So ये light warm-ups हैं जो सभी कर सकते हैं. Let's come in Kali Asana. So wide angle distance between your feet. और हम जाएंगे तो मौसी जी आप भी जुड़ी है मेरे साथ. इसको आप ध्यान से करिएगा. जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो हल्का हल्का ही करेंगे. ठीक है. तो जिनके घुटनों में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है या कोई अभी रिसेंट कुछ इश्यू हुआ है, you can go down slowly and come back up. But this is very good. This doesn't put much pressure on the knees, but it strengthens the knees. And if you're completely okay, your knees are good, then go down. तब कोई कंजूसी नहीं. Go down and up. Go down and up. Very good. सारे तमाम थोड़ा पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा लें so that yes, when you're going down 90 degree angle होना चाहिए आपके पैरों में. Go down and up. Go down and up. Go down and up. Very good, Tiwari ji. Go down and up. Very good, Preeti ji. Up. Let's do this 3 more times. Down and up. Down and up. Last count. Can we hold? So come down. Just hold it there. Keep breathing. You can keep your palms on your knees. Stay there. Stay there. Pelvic more down. 5, 4, 3, 2, and 1. Come back up and relax. Just shake your legs. अगर आपने बहुत समय बाद किया है ये तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगा होगा, but this is very effective. बहुत अच्छा प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है हमारे लोअर बॉडी में with this काली आसन. चलिए अब हम करेंगे थोड़ी सी एक चैलेंज लेते हैं अपने लिए. तो हम जाएंगे खड़े होकर, हम अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, एक्सहेल करेंगे और नीचे जाएंगे. सो अगर घुटने की प्रॉब्लम है तो हम इसको अवॉइड करेंगे. ठीक है. अगर घुटने की प्रॉब्लम है तो आप बस यहीं तक जाएं, वापस आ जाएं, ऊपर उठे. ठीक है. अगर घुटने में इशू है, घुटने में इशू नहीं है, कम डाउन, मलासन. लिफ्ट योरसेल्फ अप. इनहेल अप. एक्सहेल गो डाउन. मलासन. मलासन भी एक लिटमस टेस्ट है हमारे लिए. सो इफ यू आर एबल टू कम डाउन विद योर हील्स डाउन, मतलब आपकी स्पाइन और आपका जो पेल्विक रीजन है वो बहुत हेल्दी है. और अगर आप नीचे अपने एड़ी लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इट्स ओके.
कुछ दिन में आप पहुंच जाएंगे, बट कंटिन्यू डूइंग दिस. लेट्स डू दिस फॉर 3 more counts. Go down. 2 more times. Up and down. Up and down. आइए नीचे आ जाए मलासन में, और हम अब यहां से जाएंगे on our knees. Come on your knees. Cat and cow, मार्जरी आसन में जाएंगे. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाएं, कमर को ऊपर की ओर लेके जाएं. इनहेल करें, कमर को नीचे की ओर लेके जाएं. लुक अप. लेट्स डू दिस फॉर 3 more counts. 2 more. Last count. All right. Come back to a neutral spine posture. ऐसे आ जाएं. अपने राइट घुटने को आगे की ओर रखें. So bring your right leg. Try to, अगर आपका पैर यहाँ है उसको थोड़ा सा उठा के रख लें. Yes, walk it forward with your toes. Walk your leg forward. अश्व संचालन आसन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ आपको मैं. अपने जो पीछे वाला पैर है उसको टक किया, घुटने को ऊपर उठाया. अगर आप बहुत टाइम बाद करें तो यू माइट फील दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट विद टाइम यू गोना डू दिस एंड इट हैज ट्रिमेंडस बेनिफिट्स. सो अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे पेल्विक का. फील दैट ओपनिंग अप इन द ग्रोइन रीजन. Up and down movement of the pelvic. 5 more counts. 4, 3, 2, and 1. All right. Keep the knee back. Right पैर को पीछे लेकर जाएं. Left पैर को आगे लेकर जाएं. In between your palms. पीछे वाले पैर को टक किया, घुटना ऊपर. And let's do those pulses once again. Up down movement of your pelvic. Open up the groin region. 5, 4, 3, 2, and 1. Softly keep the knee back. Bring the other leg back. And let's take a rest in child's pose. शशकासन. गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर. शशकासन, जिनको पैरों में घुटने में प्रॉब्लम है वो अवॉइड करें वज्रासन में बैठना. लिफ्ट योरसेल्फ अप. शशकासन से वज्रासन में आए. वज्रासन हैज अमेजिंग बेनिफिट्स फॉर आवर डाइजेशन. ये हमारे डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है. इनफैक्ट वज्रासन इज द ओनली आसन दैट शुड बी डन आफ्टर ईटिंग अ मील. खाना खाने के बाद हम वज्रासन में अगर बैठे तो हमारा पाचन बहुत अच्छा हो जाता है. वज्रासन में यू सिट विद योर heels apart and you sit on your feet. So आप वज्रासन में थोड़ी देर बैठें, अपना पाचन को और थोड़ा स्ट्रांग बनाएं जब तक मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ सूर्य नमस्कार के स्टेप्स. ठीक है. जब आप थक जाएं या आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप वापस आकर सुखासन में बैठ जाइएगा. जस्ट वॉच मी एज आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग सूर्य नमस्कार. सो सूर्य नमस्कार, इतने बेनिफिट्स हैं इसके कि गिनती कम पड़ जाएगी. सूर्य नमस्कार हैज ट्रिमेंडस इफेक्ट्स, बेनिफिट्स ऑन फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी. हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की चीज को हम ठीक कर सकते हैं सूर्य नमस्कार करके, क्योंकि दिस इज द ओनली फ्लो इन द एंटायर वर्ल्ड जिसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर बॉडी इज एंगेज्ड, 95% ऑफ आवर मसल्स आर एंगेज्ड. देयर इज नो अदर फ्लो इन द वर्ल्ड दैट एंगेजेस सो मच of our body system. So just have a look at the camera. I'll demonstrate. तो सूर्य नमस्कार करते हैं जब, तो हम मैट के आगे वाले हिस्से में आते हैं. यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा, क्योंकि हम फिर पैर पीछे लेके जाएंगे. So when we are standing like this, stand with your heels together. Stand with your hands by the side. समस्थिति ही बोलते हैं इसको. समस्थिति ही मतलब आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो आगे और पीछे पैरों में, लेफ्ट और राइट पैर में, और आप ढीले ना खड़े हो, आप एंगेज खड़े हो, आपके पूरे पैर एंगेज हो, आपकी ग्लूट्स टाइट हो,
abdomen भी engaged हो, shoulders rolled back हो और आप सीधे खड़े हो, समस्थिति ही। फिर हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आगे से दिखाऊंगी मैं इसको कि हम समस्थिति में खड़े हैं और हाथों को नमस्कार में लेकर आते हैं। तो ये जो पहला आसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसको अवॉइड ना करें, इसको स्किप ना करें, बिकॉज ये तो फाउंडेशन है हमारे सूर्य नमस्कार की। दिस इज एक्चुअली ब्रिंगिंग योर राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और द masculine and the feminine coming together, joining together, the union of both. तो नमस्कार जो हम करते हैं, जब प्रणाम भी करते हैं, that also has a it's a मुद्रा, so इसको अवॉइड ना करें, इसको हमेशा ध्यान से करें। और जब नमस्कार मुद्रा में आए तो क्योंकि हम सूर्य देव का वो ऊर्जा अपने भीतर महसूस करना चाह रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो सूर्य देव जो हमें लाइफ देते हैं, पूरी दुनिया को लाइफ देते हैं, वहीं से एनर्जी है, द सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उनके लिए अपने मन में कृतज्ञता का भाव लेकर आए, ब्रिंग रेवरेंस इन योर हार्ट फॉर द सन। यहां से हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इज प्रणाम आसन, सेकेंड इज यू वांट टू टेक योर हैंड्स अप। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने पहले खोलेंगे, दोनों हाथों को, और फिर धनुष की तरह ऊपर लेके जाएंगे विद आवर स्पाइन एंड आवर बॉडी स्ट्रेच्ड। सो यू गोइंग टू स्ट्रेच योरसेल्फ अप, ठीक है, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और उस स्ट्रेच को कंटिन्यू करते हुए हम फॉरवर्ड फोल्ड में जाएंगे, ठीक है। तो जो थर्ड आसन है वो है जब हम अपने हाथों को नीचे रखते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर हमारी हैमस्ट्रिंग्स जो होते हैं वो टाइट होते हैं। सो क्या होता है कि जब आगे झुकते हैं तो हमारी कमर मुड़ जाती है, हम सोचते हैं हमारे हाथ तो पहुंच नहीं रहे, तो हम कमर मोड़ देते हैं, घुटने लॉक कर लेते हैं, कमर मोड़ देते हैं, बट दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग फॉर योर स्पाइन, दिस इज रॉन्ग फॉर योर नीज। तो हमें क्या करना है, जो हमने स्ट्रेच मेंटेन किया, अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे जाएंगे, एंड फ्रॉम हियर टारगेट योर stomach to touch your thighs, so you can slightly bend your knees so that you touch your stomach to your thighs, ठीक है, जहां आपकी बॉडी अलाउ कर रही है अभी वहां पर। तो मेरी कमर देखिए सीधी है, आई एम स्लाइटली बेंडिंग माय नीज, कीपिंग द palms right next to my feet, ठीक है। दिस इज द थर्ड आसन। तो अगर आप अपने पैर सीधे कर पा रहे हैं तभी करिएगा, वरना कीप इट जेंटल, इट्स ओके, यू जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड आसन, 1 2 3, फोर्थ इज जिसका अभी हमने वार्म अप किया, टेकिंग द राइट लेग बैक। तो टेक योर राइट लेग बैक एज यू कैन। अब ध्यान दीजिए, मेरा जो आगे का पैर है दैट इज एट एन 90 डिग्री एंगल। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे करते हैं अश्व संचालन, दिस कैन कॉज इंजरी इन योर नी, इन योर एंकल रीजन, इट इज पुटिंग मच प्रेशर इन द काफ मसल्स। तो हमें ऐसे नहीं करना है, पीछे जाना है। अगर आपका पैर पीछे है, so you can walk your foot forward so that it maintains this angle in your knee, ठीक है। And tuck the toes and we come into plank or falakasana. See, my body is in straight line, so to maintain myself in a straight line I am engaging my abdominal muscles and my glutes, इनको मैंने टाइट किया है so that I am able to come in a straight line. From here we'll go to Ashtang Namaskar, knees, chest and chin to the ground. With my pelvic raised up, the chest and chin to the ground, the knees on the ground. Then we'll flatten the toes, bring the pelvic down, scoop up into Bhujangasana. Tuck the toes, lift ourselves up, Parvatasana. Right leg forward, Ashwa Sanchalan. Left leg forward, Padhastasana. Both hands up, Hastottan, and join in Namaste, ठीक है। सो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एंड में, बट आइए मेरे साथ करिए, अब बहुत बैठ के देख लिया आपने। सो कम along with me, I'll give the instructions and you will also practice along with me. So with the practice, I will give you the cues and also the breathing cues. So come to the front end of the mat. समस्थिति में खड़े हों, heels together, glutes tight करें,
Abdomen को engage करें, shoulders roll back. Now join your palms together. Pranamasana. Take your hands up. Inhale. Inhale, you're opening up your chest, so inhale in. And as you exhale, fold forward. Now bend your knees so that your stomach touches your thighs. Bend your knees so that your stomach touches your thighs, your chest touches your knees. It's okay to bend the knees. It's completely okay to bend the knees. आपको कमर सीधी रखनी है. That is more important. With time, you're going to bring the pelvic up. तो pelvic को थोड़ा ऊपर push करें. Feel a nice stretch behind the legs. Now take the right leg back. जितना पीछे ले जा सकते हैं. Take the right leg back. अश्व संचालन आसन. अगर आपका ये पैर पीछे है तो उसको आगे लेकर आए. With both the palms on the ground, push the pelvic down. तो हो सकता है आपका pelvic यहाँ हो, ऊपर हो. इसको नीचे की ओर push करें. कमर को elongate करें और सामने की ओर देखें. You will feel a great stretch in this region, groin region. Push the pelvic more down. Now पीछे वाले पैर को टक किया, ऊपर उठाया अपने आप को. Take the left leg back. Come into plank. Engaging the abdominal muscles and the glutes. Buttocks को engage करें. पेट को engage करें. And keep breathing. I know this is tough, but you can stay there. बहुत ही अच्छी strength building होती है हमारी. Now slowly, very gently. आप ही के घुटने हैं, तो गिराने नहीं है नीचे. Softly keep your knees on the ground and your chest and chin to the ground. Shashtang Namaskar. Now flatten the toes, bring the pelvic down and raise your upper body. The neck, the chest up. Bhujangasana. Make sure that our elbows are bent. तो हम अपने आप को पूरा ऊपर उठाएंगे नहीं, अपने elbows को bent रखेंगे. And keep the feet engaged. The legs engaged. Tuck your toes, lift yourself up. Parvatasana. Inverted V. Now bring the right leg in between the palms. कुछ लोगों के लिए this is one of the most dreadful acts that happens in Surya Namaskar. कि पैर बीच में नहीं आ रहा है हाथों के, क्या करना है? It's okay. Whenever you start, everybody faces this difficulty. धीरे धीरे करके वो आने लग जाता है. But when you're coming here in the posture, move your leg forward, walk your foot forward. Now tuck your toes, lift the knee up, bring the left leg also forward. कमर को सीधा करें, pelvic को ऊपर उठाएं, घुटनों को हल्का मोड़ के ही रखें चाहे तो. And then take your hands up, stretch yourself up, join your palms in Namaste. Congratulations. But you completed just half the round because ये अभी हमने right side से किया है. Let's do this on the left side also. Join your palms together. Take your hands up. अच्छे से stretch करते हुए ऊपर लेके जाएं. Inhale. Exhale down. इस बार breathing cues पे ध्यान दीजिएगा. Inhale करते हुए left पैर को पीछे लेकर जाएं. Left पैर को पीछे लेकर जाएं. Come, practice along with me. Don't stand and watch. Lift the knee up. Take the right leg back. Come in plank. Now, as you exhale, softly take your knees, chest, and chin to the ground. Toes flat, pelvic to the ground. Raise your upper body up, neck and chest up. Bhujangasana. Tuck your toes. Lift the pelvic up. Parvatasana. Bring the left leg forward. Ashwa Sanchalan. While in Ashwa Sanchalan, push your pelvic down. Exhale to bring the other leg forward. Inhale to take your arms up, stretch. Exhale, Namaskar. Congratulations for your first round of Surya Namaskar. Let's do one more round
with breathing involved. ठीक है, इस बार आपको steps पता है, बट अब सांसों पे कैसे क्या हमें breathing pattern रखना है उस पे ध्यान देंगे. Come forward. Samasthiti. Inhale and exhale in Pranamasana. Inhale करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं. Exhale करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं. Place your palms right next to your feet. Inhale to take the right leg back. Tuck the toes, lift the knee up. Hold the breath to take the left leg back. Hold करते हैं इसमें breath. Exhale करते हुए साष्टांग नमस्कार. Go down. Inhale करते हुए भुजंगासन. Scoop up, neck and chest up. Exhale करते हुए tuck your toes, lift your pelvic up. Come to Parvatasana. Exhale out completely. Now bring your right leg forward as you inhale. Exhale करते हुए left leg forward. Inhale करते हुए दोनों हाथ ऊपर. Exhale करते हुए नमस्कार. Left side, inhale, take your arms up. Exhale, fold forward. Inhale, take the left leg back. Hold breath, take the right leg back, come to plank. Very good, all of you. Exhale, knees, chest, chin to the ground. Inhale, scoop up Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, left forward. Exhale, right forward. Inhale, arms up. Exhale, Namaskar. Just come to the center of the mat and close your eyes. Become aware of the sensations happening in the body. Now you know the steps of Surya Namaskar. You know the poses of Surya Namaskar. You know the breathing pattern of Surya Namaskar. आइए अब हम एक और राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का, पर इसको पूरी तरह अंतर्मुखी होकर करेंगे. So if your awareness is spread around, you're thinking of something else, bring it to your body and your breath, connecting to your body and breath. I will be giving cues of only the breathing this time. Okay, we'll do one more round, last round of Surya Namaskar. We'll complete 3 rounds of Surya Namaskar today. So come to the front end of the mat. One more round of Surya Namaskar. Join your palms together. Inhale and exhale. Inhale up. Exhale, fold. Inhale, right back. Hold breath, plank. Exhale down. Inhale up. Exhale, Parvat. Inhale, right forward. Exhale, left forward. Inhale up. Exhale, Namaskar. Left side. Inhale. Exhale completely. Inhale, take the left back. Hold breath. Plank. Exhale down. Inhale. Exhale. Parvat. Inhale. Left forward. Exhale. Inhale. Exhale, Namaskar. Once again, come to the center of the mat. Just relax your legs, relax your hands. Take a long deep breath. Close your eyes. Close your eyes.
और अपने लेफ्ट हाथ को अपने दिल पर रखें. You can feel your heart beating. Even if you did not practice along with me, आइए ये वाली मेरे साथ करें. आंखें बंद करें, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें. Just observe yourself. Stand still. This is very important. So अगर आप मूव कर रहे हैं, come to a standstill point. Stand on your mat with your eyes closed, your hands on your heart. Feel your heart beating. Close your eyes. और ध्यान से देखिए जो आपका दिल धड़क रहा है, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है. ये आपके पैदा होने से भी पहले से धड़क रहा है. And your heart is going to beat till the last moment of your life. इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है. ये कोई शक्ति है जो आपके अंदर धड़क रही है. That invisible power that is within all of us. मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर. ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, इसके लिए अपने अंदर कृतज्ञता का भाव भर लें. Fill your heart with gratitude that your body is working for you even without you doing anything. You're breathing, your heart is beating, your liver is functioning, your kidneys are working, और आपको पता तक भी नहीं है. Fill your heart with gratitude that your body is all fine for this beautiful body that we have. Take a long deep breath. Open up your eyes slowly. All right, come down on the mat and we'll be doing some pranayam right now. तो सूर्य नमस्कार के जस्ट बाद हम प्राणायाम करने वाले हैं. Sit in Ardha Siddhasana. You must have felt a change within yourself after doing Surya Namaskar. उसको महसूस करें अपने अंदर, उस ऊर्जा को महसूस करें अपने अंदर. And I request all of you to stay till the end. There is a discussion on diet and I'll be sharing something very special towards the end of the session. So please stay here on the session. Okay. आज हम करने वाले हैं deep abdominal breathing. Something that is very basic to all the pranayams. Something that will correct our breathing pattern. तो हम अपने जीवन भर में बहुत ही कम समय होता है जब हम अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं कि are we consciously breathing or not. We don't take care of how our breath is. कभी कोई कहता है कि सांसों पे ध्यान लगाओ, तब हम लेकर जाते हैं और महसूस करते हैं अरे हम तो बहुत ही हल्का हल्का ही ब्रीथ कर रहे थे. There is more capacity in our lungs. We can take in more air. आज हम consciously deep breathe करेंगे and we will correct the pattern of our breathing. So keep your right palm on your belly. और नॉर्मली सांस लें. आप जैसे सांस लेते हैं नॉर्मली महसूस करें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है. क्या ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं? हो सकता है आप इससे विपरीत करते हो. Very much possible. And this is usually what happens. कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए. So when you're breathing in, we're breathing in air, pushing the diaphragm, pushing the belly out. Naturally, अगर एक बच्चे का भी आप पेट देखिए जब वो सांस लेता है तो पेट ऊपर फूलता है जब वो सांस लेता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है. अगर इसका रिवर्स हो रहा है आपके साथ, so let this be a moment when you correct your breathing pattern. When you inhale, inflate your belly. When you exhale, let your belly go in. Keep your palm on the
belly. Let it be a guide for you. Close your eyes and we'll take 5 long, deep breaths. Inhale to inflate your belly. Exhale to take your belly in. Exhale out completely. Inhale. Inhale fully. Inflate your belly. Exhale to exhale out completely. Even the last bit of that breath, exhale it out. पेट पूरी तरह अंदर चला जाएगा. Inhale, long and deep. Let it be a gentle breathing. Exhale to take your belly in. Exhale out completely. Close your eyes and go for 2 more rounds on your own. Feel your breath. Softly open up your eyes. Just become aware of a sense of calm in yourself. कि आपका मन और शांत हो गया है सिर्फ 5 गहरी लंबी सांसें लेकर ही. So let us lie down. आइए हम लेट जाएं और I'll give you a quick shavasana. So we've done a good practice today. I'll give you a guided shavasana. तो दोनों हाथों पैरों को आराम से रख दे जमीन पर. Just listen to my voice. हाथों पैरों को एकदम आराम से रख दे. एक गहरी लंबी सांस भरें. Inhale. As you exhale, relax your body completely. Let us enjoy this shavasana. पूरी तरह ढीला छोड़ दें अपने शरीर को. आइए शवासन में जाने से पहले हम अपने शरीर को टाइट करेंगे. तो हाथों की मुट्ठी बनाएं, पैरों को क्लेंच करें. Inhale, hold that breath and tighten all the muscles of your body. Your legs, your stomach, your back, your arms, your face. Make a face. Tight, 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 or tight, or tight. And as you exhale, just let go. गहरी लंबी सांस भरें. Exhale out. ढीला छोड़ दें. दोनों पैर एकदम ढीले. Take your awareness to the soles of the feet. Relax the soles of the feet. Relax your calf muscles. पिंडलियों को ढीला छोड़ें. Relax them out completely. घुटनों को भी एकदम ढीला छोड़ें. Relax your knees. Bring your awareness to your pelvic region. Relax each and every muscle, bone, tissue. पूरी तरह ढीला छोड़ दें. आपके दोनों पैर एकदम ढीले. Now bring your awareness to your back, your lower back, middle back, upper back, and relax your back completely. एक गहरी लंबी सांस भरें. Inhale, inflate your belly, your back, your chest. And as you exhale,
Completely let go, as if you're sinking down into the mat. Bring your awareness to your hands, your shoulders. ढीला छोड़ें कंधों को. दिन भर आपका भार लेकर चलते हैं. Holds on to a lot of tension. Release out that tension from your shoulders and relax both the arms. कोहनियों को ढीला छोड़ें, कलाइयों को भी ढीला छोड़ें, हथेलियों को भी ढीला छोड़ें. Even your fingers and fingertips, just relax your hands completely. Bring your awareness to your neck region. आपका गर्दन और सर एकदम ढीला छोड़ दें उसको. आपके माथे पर भी कोई बल नहीं. Relax your forehead, your eyebrows, all your facial muscles. और आखिर में अपनी आंखों को भी ढीला छोड़ें. The moment you relax your eyes, your entire body becomes completely relaxed. बंद आंखों से विजुलाइज करें, सर से लेकर पांव तक आपके अंदर एक शांति की लहर दौड़ रही है. Scan your body and feel this wave of peace and relaxation traveling from the crown of the head down to your neck, your shoulders, your back, your pelvic, your legs, into your knees, calves, down to the soles and the tip of the toes. Feel that wave of relaxation traveling upwards now from the feet, the ankles, the calves, knees, thighs, the pelvic, up your belly, your chest, your shoulders, into your neck, your head, up to the crown of the head. आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव और आपकी ऊर्जा पूरी तरह पॉजिटिव, सकारात्मक हो चुकी है. Take your awareness to your heart center. अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं और अपने हृदय की गहराइयों तक ग्रैटिट्यूड भर लें. Fill in your heart with gratitude for this beautiful body that you have. Gratitude for all the people in your life. चाहे वो आपके लिए अच्छे हों, बुरे हों, कोई बात नहीं. ग्रैटिट्यूड लेकर आए. अगर कोई आपको लगता है कि आपको कोई दुश्मन भी है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड लेकर आए. Fill your heart with gratitude for all the lessons that you've learned from all the negative situations. Fill in gratitude for all the love that you've got. Fill in gratitude for all the support that you've got in your life. Fill in thankfulness and gratitude for this life that you're living. कि आप जिंदा हैं, इसके लिए भी अपने हृदय में धन्यवाद भर लें. And lastly,
Thank yourself for taking out time for yourself today. Pat your own back. अपने आप को धन्यवाद दें. एक गहरी लंबी सांस भरें. Inhale. Exhale out. Bring your awareness back to your body. Wiggle your toes, your fingers. Move your head from side to side gently. Interlock your fingers और हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक बढ़िया सी अंगड़ाई लें. Waking up, stretch. लेटे लेटे ताड़ासन. और पैरों को फोल्ड करें. राइट हाथ का तकिया बनाएं. Turn towards the right side. Just take a moment. Take a breath there. करवट लेकर एक सांस भरें और धीरे धीरे हथेलियों की मदद से उठकर बैठ जाएं. वापस उठकर बैठ जाएं सुखासन में. हथेलियों को रखें अपने घुटनों पर. ज्ञान मुद्रा बनाएं. आंखें बंद करें. आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. While chanting Om, feel the vibrations rising up in your body. Inhale. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. हथेलियों को आपस में रगड़ें. गर्माहट लेकर आए. Cup your eyes. आंखों पर रखें. Feel the warmth and the soothing darkness of your palms. Relax your eyes in your palms. धीरे धीरे हथेलियों को दूर लेकर जाएं. And blink open your eyes. Look into your palms. हथेलियों में देखें पहले. Look into your palms. And bring a big smile on your face. You've done so well today. Join your palms. Namaste. Thank you for practicing with me. आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें. इसी कामना के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे. That was the practice session today. Please let me know how you felt during the session. And I'm open for discussion, any questions right now. आज Sunday है तो I think we can stretch a little bit. 8:15 तक हम stretch कर सकते हैं. बहुत अच्छा लगा. नमस्कार. मैं भीम सिंह कासनिया. बहुत ही अच्छा लगा. शानदार. थैंक यू भीम सर. मैंने चैट में एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है. सो स्क्रॉल अप द चैट. you'll find that feedback form. So please वो feedback form भरिए and let me know how you felt. और just let me give a little announcement so that अगर किसी को जाना हो तो अब जा भी सकते हैं. Aparna wants to say anything. Aparna? Yeah, thank you, Sakshi. Arunama ji loved it. Very, very nice session. I think we should do it daily because your group hoga na, so we get it done, right? I mean, I know I love to do all that gratitude, breathing, yoga,
but just I skip it because of the office and now because Sakshi ji was so that we have to do it together, let's do it. So just loved it. Thank you so much, Aparna ji. I That think was we should do lovely. it very regularly. We should do it as a group, this group, right? Once we all become friends, we start doing it regularly, start motivating each other, getting our families joined up. I think we We will. Aparna is our executive committee member. Okay. Nice to see you. She is Nice to also meet you, from ma'am. IIT Delhi Alumni Association. So may I Okay. know how many of you are IITians today who have joined us? You can send a yes in the chat box. All the IITians. How many of you are our alums? We want to know. Yes, Alok sir is there. Okay. And who else? Aparna. Then Dharmendra No. is there. Yes, myself is there. Arunima is there. She is also our alum. Yes, I am here. और कौन है IIT से? Harsh is here. Shyam Hi, Harsh. Kumar. आप इतना सोच के Shyam. क्यों बोल रहे हैं? So we have organized this session for our alumni as well as for the society as well. So we kept this session open for all. Yeah. So I think there are so many from my friends list who have joined. Okay. Okay. बहुत सारे Okay. मेरे family and friends and knowns जो मैंने कल messages भेजे थे. I think that has excited so many people. Thank you so much for joining today. I want to just tell कि मैं अगले हफ्ते आप सबके लिए क्या प्लान कर रही हूँ. So the coming up sessions, 5 sessions are absolutely free. और Monday, starting from tomorrow, Monday I would focus on body pain relief. So हम काम करते हैं and we don't take care of our shoulders. Most of us have frozen shoulders or neck problem or knees, back problem. So tomorrow, Monday session will be releasing all that pain. That will be gentle yoga flow. Tuesday would be for gut health. बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो सुबह सुबह परेशान होते हैं, हमारा पेट ही नहीं साफ हो रहा. Constipation, bloating होती है, acidity होती है, obesity है, मोटापा है, उसके लिए. So Tuesday would be focused on gut health. Third is very common, season change होते ही हमें flus हो जाते हैं, है ना, जुकाम खांसी बुखार हो जाता है. So immunity strong करने के लिए, हमारी heart health को अच्छा बनाने के लिए, lung health को अच्छा बनाने के लिए, Wednesday would be focused on breathing and blooming along with a lot of pranayam and yoga for improving the immunity. Thursday is, I have thought of bringing in hormonal balance. That is one of the major problems most of us women are facing. Hormonal disbalance रहता है. PCOD is a common problem. Thyroid बहुत common हो गया है. Fertility issues, especially for the young couples. Fertility has become a very great cause of pain for young couples. तो fertility कैसे improve करें, reproductive health कैसे improve करें. This will be both for men and women. Thursday session would be for hormonal balance, bringing that balance within. And Friday वाला जो है वो special session है. That is for the nervous system, our sleep. तो हम रात में सोते तो हैं पर हमें अच्छी नींद नहीं आती है ना. रात में हमारी आंख खुल जाती है, रेस्टलेस फील करते हैं या इंसोम्निया है. तो उसके लिए फॉर अ गुड नाइट स्लीप, Friday session would be for calming down our nervous system, working on our nervous system. So I have got 5 beautiful sessions lined up, and it is all for free for all of you who have attended. I think there were more than 40 people today. There's such a good number. Yeah. 35 people are still listening to me. So we have reached maximum 40 today. Wow. So 35 people listening to me. I would want कि आप ये सोचें कि आपके 24 hours में से 1 घंटा is not even 5% of the time. ठीक है. अगर आप वो 5% टाइम भी अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं तो आप कितनी बड़ी आप अपने लिए ब्लंडर कर रहे हैं. अरुणिमा जी, आप वेलनेस आर्किटेक्ट भी हैं, वेलनेस आर्किटेक्ट भी हैं. ये तो बहुत ही मतलब धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने अच्छे सेशन में ऐड किया. मैं कल और भी लोगों को ऐड करूंगा. आज भी मैंने 2-3 लोगों को लिंक भेजा. कल मैं बहुत सारे लोगों को ऐड करने वाला हूँ आपके साथ. थैंक यू सो मच. Thank you. All from 7 to 8 in the morning.
Yes, 7 to 8 in the morning. Okay, thanks. 7 से 8 ही है. ये जो हफ्ता है ये 7 से 8 वाला है. उसके बाद जो नॉर्मल मेरे योगा सेशंस होते हैं, रेगुलर योगा सेशंस, आई विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. आई हैव 2 टाइमिंग्स अवेलेबल, 6:30 to 7:30 and 7:30 to 8:30. So you can join my regular yoga classes. उनकी भी themes ऐसी ही रहती हैं, interesting themes रहती हैं. We are working on all kinds of how we can make our body stronger, flexible, bring ourselves in balance. और ये जो हमारी बीमारियां लग गई हैं इतनी जो नहीं होनी चाहिए, we don't deserve to live with such kind of health. We deserve a good health, so उसके लिए हम काम करते हैं. So those are regular sessions. You can join my regular sessions post this week, so you can get an idea and also learn a lot of things. And I'll be organizing more such sessions and special sessions on Saturday and Sunday. जैसे आज सूर्य नमस्कार का था, तो Sundays will be dedicated for सूर्य नमस्कार. So I have so much of things coming up, planning up. बस आप मेरे साथ जुड़िए. I've shared my number, my chat link. You can join me through that chat link, WhatsApp chat. मेरा phone number 8920419090. You can just contact me. और आपके लिए एक और स्पेशल सेशन है, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है. सूर्य नमस्कार जो आज हमने सीखा है उसको मंत्र उच्चारण के साथ भी किया जाता है. तो आज टाइम कम था इसलिए मंत्र उच्चारण नहीं करा पाई मैं, बट जब हम मंत्रों के साथ करते हैं उसका प्रभाव एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है. सो आई हैव अ वीडियो फॉर यू. यू कैन सर्च अरुणिमा योगा ऑन यूट्यूब and I have just uploaded a video on Surya Namaskar with mantras. So those are 6 rounds of Surya Namaskar. 15 minutes में आप 6 rounds कर लेते हैं. तो 6 round मतलब एक round मतलब right and left both. So ऐसा काउंट किया जाए तो वो 12 राउंड्स हो जाते हैं. 15 मिनट्स में 12 राउंड्स आप कर सकते हैं. अगर आपके पास समय नहीं है, जस्ट स्विच ऑन दैट वीडियो एंड प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार विद दैट वीडियो. एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर सूर्य नमस्कार, जस्ट सिट डाउन विद योर आईज क्लोज्ड एंड फील द changes happening in yourself. How much do you charge for your regular sessions? Excuse me. Ma'am, जब आप contact करेंगे तो I'll share the charges and the fees. Excuse me. So First, this session enjoy the is, free sessions I am giving. yeah. So this is the free session on behalf of IIT Delhi Alumni Association. So no personal questions from Arunima here. We are IIT Delhi Alumni Association community, and many of the IITians are also there. So please don't such personal talks here. I think Arunima, now you can continue with your diet session, and then yeah. So diet के पहले I would want people to ask me questions. So ऐसा करूँगी मैं कि diet से related जो भी questions हैं, I'll first note them down and then I'll give the answer, and it'll happen quickly then. So आप में से जिसका भी कोई प्रश्न हो, please ask. Yeah. Please, So please. first question is from my side, Arunima. So Yeah. for gastric problem, what diet we should include? Many of us are facing gastric problems. Yeah, that's my question. Okay. Second question. Any other question? Please पूछिए. जब आप पूछते हैं तो वो जवाब अंदर से आता है. So it will give me a So for the stimulus same to answer. problem that Dr. Sakshi said, what food we should not include? Okay. One thing is to include and Not one having. to अगर avoid. अरुणिमा जी, अगर हम फूड की बात में अगर हम मिलेट्स को छोड़ दें, मिलेट्स तो चलिए हम लोग लेते हैं, लेकिन जनरली आजकल रोटी के लिए, गेहूं के लिए भी लोग कहते हैं कि नहीं वो गेहूं है. तो क्या ये आप बताएं कि हमें जब मौका मिलता है, जब जनरली कहीं हम जाते हैं भारतीय परिवार में या कहीं भी, तो राइस या रोटी रहता है, तो हमें अगर ऑप्शन चुनना हो तो उन दोनों में कौन बेहतर होगा? क्योंकि कभी तो कोई बताता है कि रोटी बहुत खतरनाक है, कभी कोई बताता है कि नहीं राइस उससे भी ज्यादा है. तो ये ठीक है. राइस और मिलेट और व्हीट. ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन? Hello, good morning, Arunima. First of all, I would like to thank you for such an energizing session today, and especially the pranayam part and the relaxation part. Thank you so much. I'm glad you enjoyed it. नहीं, thank you very much. My question is कि आजकल जैसे भागदौड़ की जिंदगी में खान पान पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब
take out time and healthy क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. So I would like to ask in the overall picture, if you can give an overall picture of what to eat and what to avoid for a healthy lifestyle, in addition to the exercising part and the yoga part. Thank you. Sure, sure. Thank you. Any other question? तिवारी जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. बहुत बढ़िया रहा आज तो, बहुत ही अच्छा था. नहीं अरे बस मैं सुन रहा हूँ. ओके ओके. क्वेश्चन कुछ ऐसा किसी नहीं और का कोई प्रश्न? आई थिंक ओवरऑल ही सब जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, क्या हेल्दी खाना चाहिए. मैम का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के वो था, तो एक मिला जुला आंसर दूंगी. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू. देखिए, जब हम भोजन की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम क्या हेल्दी खा लें, है ना, क्या एक चीज़ खा लें, क्या एक चीज़ अवॉइड कर लें, तो जब हम इस सोच से चलते हैं तो हम एक लिमिटेड सोच में हैं, है ना. हम सोच रहे हैं बिट्स एंड पीसेस में, ये खा लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, वो खा लें तो हमारे लिए अच्छा होगा. जब हम योग की बात करते हैं तो योग actually enables us to make us more conscious. धीरे धीरे करके आप आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपके चॉइसेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ बिकम कॉन्शियस. वही कॉन्शियसनेस तक जाने का ही रास्ता है योग, चाहे वो हमारा बिहेवियर हो, चाहे वो हमारा ईटिंग पैटर्न्स हो. सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योगा इज दैट यू बिकम कॉन्शियस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मैंने मैंने पिज्ज़ा खाया, ठीक है, और आज घर में मेहमान आ रहे हैं और हमने सोचा क्या करें, आज यार छोले भटूरे खाने का मन हो रहा है, तो हमने फिर आज छोले भटूरे खा लिए. फिर हमारा कल मन हुआ कि आज पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है और हमने पेस्ट्री खा ली. तो क्या हुआ कि हमारा जो मन हो रहा है हम वो खा रहे हैं, तो एक तरीके से हम अपने आप मन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन जब हम कॉन्शियस, हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, तो पहले तो ऐसे होगा कि हमें याद रहेगा कि हमने कल पिज्जा खाया था, हमने कुछ कल सेहत के लिए अच्छा नहीं खाया, तो आज रहने देते हैं छोले भटूरे, है ना. हमने ऑलरेडी कर दी, हमने ऑलरेडी ले लिया, कुछ प्रोसेस्ड फूड खा लिया कल, तो आज छोले भटूरे नहीं खाते. सो यू विल गेट दैट फ्रॉम इनसाइड. आपकी इनर वॉइस विल स्टार्ट स्पीकिंग. फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब पहले दिन आपने पिज्जा खाया था, उसके पहले ही आ जाएगा, जब आप पिज्जा ऑर्डर करने वाले होंगे, आपके मन में इच्छा आएगी ना, तो आपके मन में आएगा नहीं यार पिज्जा खाना, क्यों खाना है पिज्जा, है ना. व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज नॉट गुड फॉर माय हेल्थ. एवरीबडी नोज प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एवरीबडी नोज, है ना. ये इसमें कुछ मेरे ज्ञान देने की कोई बात ही नहीं. एवरीबडी नोज कि ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, वो मोटापा बढ़ाता है. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, जो या यू शुड फील गिल्टी एक्चुअली व्हाइल ऑर्डरिंग. वो गिल्ट जो है ना, दैट इज एक्चुअली मेकिंग यू कॉन्शियस. एंड पॉइंट इज दैट वी मूव आउट ऑफ द गिल्ट. हम अपने आप को इतना ग्रो कर लें कि हम उस पॉइंट पे पहुंचे ही ना कि हम कुछ खाने के बाद गिल्टी फील करें, है ना. सो गिल्ट, वेरी गुड कि आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. कई लोगों के साथ गिल्ट फीलिंग ही नहीं है, वो बस खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो अपनी किडनी के लिए कितनी खराब चीज कर रहे हैं, है ना. उनको पता ही नहीं है उनकी लिवर कितनी परेशानियां झेल रही है. हर फ्राइडे नाइट या रात में हम पैक बना के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं हमारा लिवर क्या रो रहा है बैठ के अंदर कि तुम क्या कर रहे हो भाई. सो फर्स्ट इज योग प्रैक्टिस करें, आसन प्रैक्टिस करें, उससे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है. योग प्रैक्टिस और क्या होता है, एक चीज और कि हम खाना तो हमने सोचा चलो ये हेल्दी खाना खा ले, है ना. अब हमारा बॉडी ही रेडी नहीं है कि उस न्यूट्रिशन को ले. उसके लिए क्या करें, आप ग्लास सीधा रख के पानी भरेंगे तभी तो पानी भरेगा ना. ग्लास को उल्टा कर दिया, पानी भरेगा नहीं, भरेगा ग्लास में. हमारी बॉडी ही रेडी नहीं है, इस वेसल को रेडी करना है ना, कि हम उस न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब तो कर पाए. आप देखिए कि हम में से ऑनेस्टली बताइएगा कि हम लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं बिल्कुल कि हमारा रोज सुबह पेट साफ होता है बिना किसी दिक्कत के. गिव मी अ हैंड्स अप. कोई ऐसा है हम में से? वेरी गुड. अगर आपका है ऐसा तो यू आर वेरी रेयर पीपल, वेरी फॉर्चुनेट पीपल कि आपका डाइजेशन अच्छा है. मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग दिस डाइजेस्टिव इशू. हमारे इंटेस्टाइन्स ही क्लीन नहीं हो पा रहे हैं.
इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं है तो हमारी एसिडिटी बन रही है। एसिडिटी बन रही है तो इसमें आप चाहे कितना ही न्यूट्रिशियस खाना डाल दे, वो जहर ही बनेगा अंदर जाके। आपके पेट में आपने एसिड पाल रखा है, तो आप कुछ भी हेल्दी खा लिए वो आपको नहीं लगेगा। सो फर्स्ट इज दैट यू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। हाउ टू इम्प्रूव आवर गट हेल्थ? जब हम योगा करते हैं, मूवमेंट करते हैं, नॉट जस्ट मूवमेंट, अवेयरनेस लेकर जाते हैं, अवेयरनेस के साथ मूवमेंट करते हैं। योगा इज movement with awareness. It is not simple exercise, it is not simple sports कि आपने, that is only for physical benefit. जब आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को लेकर जाते हैं, तब आप अपने आप को होलिस्टिकली इंप्रूव करते हैं। सो माय पॉइंट इज नॉट, डोंट लुक फॉर आंसर्स इन टिडबिट्स, लुक फॉर अ होलिस्टिक आंसर। जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी। तो जब हम आयुर्वेद में हेल्थ की बात करते हैं, उसमें वात, पित्त, कफ की बात करते हैं। ये दिन में बदलता रहता है। सुबह का जो समय होता है वो हमारा कफ का समय होता है। तभी आपको, अगर आप नोटिस करें तो सुबह हमारा बलगम थोड़ा ज्यादा होता है जब हम सुबह उठते हैं, है ना। जो दिन का समय होता है उसमें पित्त का समय होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो अच्छे से पच जाता है। दोपहर का समय पित्त वाला समय है, शाम वाला समय वात वाला समय है। जब गैस बनती है तो ज्यादातर शाम को ही बनती है। द्विवेदी जी, मैं भी आपका प्रश्न लूंगी, लेट मी कंप्लीट, आई विल कम बैक टू यू। ऐसे ही हमारे एज के साथ है। जो बच्चे होते हैं उनकी कफ प्रकृति ज्यादा होती है। जब हम अडल्ट में आते हैं तो देखिए हमें ज्यादा, जो 30s 40s वाली एज है, वो पित्त बढ़ा हुआ होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम ये इसी एज के दौरान आती है। और जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो हमारी वात ज्यादा दोष बढ़ जाता है। तभी जो बूढ़े लोग होते हैं उनके आर्थराइटिस की दिक्कत हो रही है, घुटने जॉइंट पेन हो रहा है, वो वात वाली दिक्कत है। तो फर्स्ट इज यू अंडरस्टैंड, मी गिविंग अ वन सोल्यूशन, यूनिवर्सल सोल्यूशन कोई नहीं है। आप अपने शरीर के खुद सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। बस बात यह है कि आप अपने शरीर की सुनना शुरू करें। आप अपने शरीर को पहचाने कि मुझे आज एसिडिटी फील हो रही है, मेरा पित्त बढ़ा हुआ है, तो मुझे क्या खाना चाहिए। उस वक्त आप कोकोनट वाटर ले लीजिए, है ना। आप डॉक्टर साक्षी, आपने पूछा कि एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए क्या ले, कोकोनट वाटर लीजिए। आप खीरा लीजिए, खीरा आपको मदद करेगा। अगर आपको एसिडिटी होती है, आप सुबह उठ के ऊषा पान करिए। ऊषा पान तो सभी को करना चाहिए कि जब आप सुबह उठें गुनगुना पानी पीजिए, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, धीरे धीरे करके उसकी थोड़ी सी 4 ग्लास पानी, कौन सा पानी? ऊषा पान इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर ऊषा के टाइम पे जहाँ पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, जब आप सुबह उठे तो गर्म गुनगुना पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, तो वो आपकी बॉडी, और गुनगुना पानी पी के थोड़ी देर टहलिए। और कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आप तब कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन हुआ, आपके मलासन हुआ, कटी चक्रासन हुआ, कुछ कुछ ऐसे आसन है जो आप कर सकते हैं, तो आपका पेट साफ होने लग जाएगा। फिर एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम बहुत आराम से, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, दवाइयों को के ऊपर खर्चा करते हैं, ये हम बहुत आराम से करते हैं, हमारे लिए नॉर्मल हो गई है चीज। बट एक चीज है जो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में अवेलेबल है, प्लीज मेक यूज ऑफ दैट। नेचुरोपैथी में शंख प्रक्षालन करके एक एक्टिविटी है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन्स क्लीन होती हैं, विरेचन होता है, वमन क्रिया होती है जिसमें आप एसिडिटी को पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप नेति कर सकते हैं जिससे कि आप अपना कफ एरिया, अपना अपर बॉडी, हमारा गैस्ट्रिक चीजें और जो हमारा इंटेस्टाइन वाले, उनको हम क्लीन कर सकते हैं। सो प्लीज मेक यूज, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करिए, आयुर्वेदिक सेंटर्स पे जाइए, पंचकर्मा करवाइए। अभ्यंग होता है, जब बॉडी मसाज होती है, थेरेपेटिक मसाज होती है, वो करवाइए। इट्स वेरी गुड फॉर द मसल, द जॉइंट हेल्थ। चाहे आपको वात की प्रॉब्लम हो, चाहे पित्त की प्रॉब्लम हो, चाहे कफ की प्रॉब्लम हो, मेक यूज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। ये एक टाइम के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि अरे पंचकर्मा कराने के लिए मेरे 25,000 एक बार में खर्च हो रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं 50,000 खर्च हो रहे हैं, बट दिस इज अ वन टाइम। एक बार आप एक साल में भी कराएंगे ना, इट इज लाइक रिजुविनेटिंग योर बॉडी। वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट। एक बार आप मतलब महसूस करके देखिए जब आप उसको करवाएंगे कि आप अंदर से कितना क्लीन करेंगे। सो दैट इज एक्चुअली 1 वीक और 14 डेज, जैसा भी आप प्लान करेंगे, वो 1 वीक में वैसे ही आपको क्रिया करवाएंगे, षटकर्म करवाएंगे, वैसा ही आपको भोजन देंगे जो आपकी बॉडी को सूट करता है। इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक यू आर टोटली कंप्लीटिंग योर इंटरनल, कंप्लीटली चेंजिंग, ब्रिंगिंग न्यू, रिफ्रेश कर रहे हैं आप अपने इंटरनल सिस्टम को। सो मेक यूज ऑफ। रिकमेंड कहाँ से करवा सकते हैं पंचकर्मा, जहाँ बहुत अच्छा हो और मैम मॉर्निंग पतंजलि में से हो? करवा सकते हैं आप, साउथ में पतंजलि काफी में तो सारे यार अच्छे छुट्टी हैं। लेके जाना पड़ेगा ना, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर वर्किंग पीपल। कोई नियर बाय नहीं, वही दिल्ली तो में मैं ही कह हो। रही हूँ,
देखिए हाँ। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम सभी लोग ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, है ना। और हमारे ड्राइंग रूम डिस्कशन ज्यादातर क्या होते हैं, और रियल एस्टेट वाले, है ना, कहाँ प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा यही होते हैं व्हाट वी आर डूइंग इज इन इन्वेस्टिंग एंड ऑल। राकेश झुनझुनवाला आपने नाम सुना है ना, मतलब बाप रहे हैं वो ट्रेडिंग के, है ना। he died at the age of 62 and during Yeah. the later years of his life he said that I did not invest in my health, that is the biggest mistake that I have done। ठीक है, मतलब that person who is earning so much is understanding कि he died due to kidney failure, he died due to his liver failure, he died due to a मतलब internal organs उनके काम करने बंद कर गए। even at the age of 62 is not an age, but it was an indicator कि आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें, अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, all that investment that you're doing in property and all everything that will go to waste, वो चला जाएगा, एक दिन मर जाना है हमने। invest in your health, please invest in your health and invest both, पैसे भी लगाइए हेल्थ के लिए और समय भी दीजिए हेल्थ के लिए। कोई बात नहीं अगर आप अपने काम से छुट्टी लेकर अपने लिए एक हफ्ता बाहर जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। एक हफ्ता अपने फैमिली Okay. को लेकर जाइए, ऐसा जगह पे जाइए जहाँ आपको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, अच्छा भोजन मिले, थोड़ा आपके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, सात्विक भोजन मिलेगा, वैसे ही आपको सराउंडिंग मिलेगी। यू विल बी मोटिवेटेड टू व्हेन यू आर कमिंग बैक टू दिस नॉर्मल वर्क लाइफ, यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ मुझे वैसे ही अपनी दिनचर्या रखनी है, वैसे ही अपना आहार रखना है। We got So it. Yeah. yeah, तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन वी हैविंग कि क्या नहीं खाना, ये तो पता है कि भाई प्रोसेस फूड नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना वो जो होता है। तो आयुर्वेद में और भगवत गीता में भी 3 तरीके से डिवाइड किया है भोजन को, वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक खाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सात्विक खाना हमें खाना चाहिए, वही हमारे अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी भर के लेकर आता है। तो सात्विक खाना क्या है, जो भी हमें नेचर से मिल रहा है, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, अभी दाल चावल वाले पे आऊंगी मैं द्विवेदी जी, बट ये जो नेचुरल फूड है, जो हमारा घर का बना खाना है, चटनी खाते हैं और हम घर पे बनाए हुए सूप लेते हैं। हमारी भारतीय थाली है वो बहुत अच्छी थाली है, उसमें दाल, सब्जी, रोटी, मट्ठा, चटनी, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है ना। 6 रस की बात की गई है कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला और तिक्त, ये 6 रस होते हैं। तो अगर आपकी थाली में ये इनका छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भाग सबका है, तो आपकी थाली एक बैलेंस थाली है। ठीक है, अगर हम मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वो सभी बात करते हैं, ज्यादातर वो हम लोग उसी भाषा में बात करने लग गए हैं। पर आप देखिए कि इतना हमें मतलब एक एक छोटी छोटी बारीकी चीज को ध्यान रखने की बजाय अगर हम सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास 6 रस हैं कि नहीं है, इट विल गिव अस। और एक और चीज, अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराते रहिए बीच बीच में। आप देखिए आपके अगर अंदर डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, यू कैन फाइंड आउट कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए क्या लें, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए क्या लें ना, गुड़ लें, अनार खाएं, बीटरूट लें। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में दीजिए, आपके लिए क्या डेफिशिएंसी है उसको पूरा करिए, आपकी प्रकृति क्या बोलती है। और ये प्रकृति भी हमारा सीजन की तरह चेंज होता है, दिन और रात के साथ चेंज होता है। तो इट इज नॉट समथिंग डेफिनेट कि मुझे ऐसे ही बिल्कुल फिक्स कर लिया आपने, नहीं, allow that change to allow that organic thing to happen कि हाँ आज मुझे ये, आज मुझे वो, मतलब ये आपका शरीर खुद ही आपसे बात करता है और खुद ही बताता है। और चलिए द्विवेदी जी के क्वेश्चन पे आते हैं कि और गेहूं वाली चीज, तो ये बात सच है और ये मेरी आजमाई हुई बात है कि अगर हम गेहूं छोड़ के मिलेट पर आते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। मिलेट जो होते हैं जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ओरिजिनली आप देखिए भारतीय थाली में हमारे पहले गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती थी, है ना, ज्वार बाजरा की रोटी खाई जाती थी। मोटा अनाज हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी, उसमें आयरन और कैल्शियम है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। तो वीट और वीट से रिलेटेड जैसे मैदा हो गया, मैदा तो सभी जानते हैं कि मैदा जो है चिपक जाता है अंदर इंटेस्टाइन में जाके, नान खाते हैं तो वो निकलती नहीं है अगले सुबह, है ना, बड़ी दिक्कत करती है। तो मैदे वाली चीज हो गई या वीट वाली भी चीज, यू कैन लोअर डाउन द क्वांटिटी एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स इन योर डाइट। और मिलेट्स की भी बहुत सारी वैरायटी हैं, मिलेट्स को बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है, सरकार भी प्रमोट कर रही है।
हमारी सेहत के लिए नहीं, धरती के लिए भी अच्छा होता है, उपजाऊ बनाता है धरती को, तो हमारी धरती माँ भी उससे और सेहतमंद होती है। तो मिलेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और मिलेट्स में हम, जैसे अगर हम रागी की रोटी बनाते हैं तो उसको बनाने का एक तरीका है। जब आप स्टार्टिंग में खाएंगे हो सकता है स्वाद ना बने, पर उसको ऐसे ही बनाएं, उसमें कुछ आप मिला भी सकते हैं, उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो भोजन करिए, ऐसा भोजन करिए जिसमें आपको स्वाद आए। तो भोजन का भी उसका भी एक मंत्र होता है कि वो रसमय हो, सूखा ना हो, ड्राई ना हो, ठीक है, स्निग्ध हो। इसलिए घी का इस्तेमाल करें। गाय का घी बहुत अच्छा होता है, हमारी नस नाड़ियों को वो लुब्रिकेटेड रखता है। और ये बहुत सारी रिसर्च पहले गाय घी को बहुत ही बैड लाइट में लेकर आए, रिफाइंड ऑयल लेकर आए मार्केट में। इट इज ऑल अ मार्केट स्ट्रेटजी। बहुत सारी रिसर्च अभी भी हो रही है और अवेलेबल है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि घी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एक्चुअली गिराता है घी। तो यू कैन रीड अबाउट घी। घी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। और घी तो बल्कि खाने के साथ साथ उसको आप अपने शरीर पे लगाएं, नाक में और पैरों में, हाथों में लगाएं। घी अगर आपका गला खराब है तो गर्दन में लगाएं। तो घी हैज इमेंस प्रॉपर्टीज। तो घी एक चीज हो गई, और एक शहद हो गया। तो शहद जो है, शहद भी एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और शहद इज ऑल्सो वेरी गुड दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। तो जो भी हमारा खाना हो वो सूखा भोजन ना हो, स्टेल फूड ना हो। तो सात्विक भोजन तो ऐसा हो गया, राजसिक भोजन हो गया जो एक्साइट करता है हमें, स्पाइसी फूड होता है, ज्यादा मिर्च मसाले तेल वाला जो होता है ना, जो हम पार्टीज में ज्यादातर खाते हैं। कढ़ाई पनीर बनाएंगे अपने लिए, गार्लिक नान के साथ खाएंगे, वो वाला सब राजसिक खाना है। तो राजसिक खाना जितना आप खाएंगे उतना ज्यादा आप आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट भी कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं लेकर जाऊंगी टी एंड कॉफी पर भी। तो चाय और कॉफी जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है। कोई आता है चाय बना ली, सुबह उठे चाय बना ली, है ना, कहीं भी गए चाय पी ली। या जिसको कॉफी, जो लवर्स होते हैं वो बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम स्टारबक्स जा रहे हैं कॉफी पीने। बट देखिए, आप जो वो खर्च कर रहे हैं अपने लिए सिर्फ 300 रुपए एक मग में, इट्स एक्चुअली गोइंग टू हार्म यू अ लॉट। आप कैफीन ले रहे हैं, आप अपनी नर्व्स को एक्साइट कर रहे हैं। तो आपको नींद नहीं आएगी रात को ठीक से। आप कॉन्शियसली होके सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। श्योर। तो टी एंड कॉफी के बहुत अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं। कल ही डॉक्टर साक्षी से बात हो रही थी, हम सत्तू इंक्लूड कर सकते हैं। सत्तू, आपको नमकीन पीना है तो नमकीन बना लें, नींबू के साथ मीठा बना सकते हैं। हर्बल टीज लाइए अपनी लाइफ में प्लीज। ये तो मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, मेरे खुद के लाइफस्टाइल में मैंने हर्बल टीज लेकर आए। जो आप चाय पीते हैं, दूध वाली चाय इज द सोर्स ऑफ एसिडिटी। दूध जैसे ही आप डालते हैं चाय में, वो आपको एसिडिटी ही बनाएगा। तो अगर आप चाय पी रहे हैं तो प्लीज अवॉइड एडिंग मिल्क टू इट। यू कैन हैव ब्लैक टी, वो भी उससे बहुत अच्छी है। दूध वाली चाय आई नो बहुत लोगों की फेवरेट होती है, बट कभी कभी पी ले, कोई बात नहीं। जब आपका मन करे अदरक वाली चाय बनाए पीजिए, लेकिन अवॉइड। तो हम उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हर्बल टीज लेकर आ सकते हैं। इलायची, दालचीनी, इस टाइप की हर्ब्स अपने खाने में इंक्लूड करिए। इलायची, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, ये वाले इनके साथ आप कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे हर्बल टीज अवेलेबल हैं। हाइबिस्कस वाली चाय होती है, वो बस ये है कि आपका स्वाद बन जाए, उसमें आप कुछ कुछ ऐड कर लीजिए फ्लेवर्स कि आपको स्वादिष्ट लगे। सो जस्ट डिच द मिल्क वाली टी टू दिस। एंड और तामसिक भोजन में क्या आता है, तामसिक इज ऑल स्टेल फूड, जो रखा हुआ फूड है, प्रोसेस्ड फूड है। हम जाते हैं मार्केट से ब्रेड खरीद ली, जाते हैं बन खा लिया, पिज्जा खा लिया, जो रखा हुआ चीज है। या फिर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज तामसिक चीज। और तामसिक हमारे अंदर लिथार्जी लेकर आएगा। एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट आई ब्रिंग टू योर फोकस इज कि हम कितना भोजन खाएं और कब कब खाएं। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तब हमें भूख भी लगेगी और खाना भी वाजिब है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल बस एक मुश्किल से हम 1 घंटा निकाल रहे हैं सुबह अपने लिए, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, और दिन में हम पूरे दिन बैठकर काम कर रहे हैं, तो क्या हमें उतना सारा भोजन खाने की जरूरत है? या फिर एक और चीज आप कॉन्शियसली सोचिए कि जो हम खाना खा रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन केयरफुली। जो हम खाना खा रहे हैं, तो क्या वो हम खा रहे हैं क्योंकि हमें हमारे सेहत, हमारे शरीर को जरूरत है, या हम खाना खा रहे हैं
क्योंकि हमारा मूड खराब है। जब हमारा मूड खराब होता है तो क्या करते हैं, Overeating बहुत तुम्हारे होती लिए है, and we order a पेस्ट्री, lot of junk also. यू You're right. ऑर्डर जंक। तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारे लिए पेस्ट्री ऑर्डर कर दूं? यू आर नॉट डूइंग हेल्प टू योर पार्टनर, यू आर एक्चुअली हार्मिंग। आप उनको शुगर रश दे रहे हैं, है ना। चलो मूड खराब है यार, आइसक्रीम खा के आते हैं। भाई अरे मूड खराब है तो मूड को ठीक करिए ना। क्यों अपने अंदर एक्स्ट्रा शुगर डाल रहे हैं, क्यों पेस्ट्री खा रहे हैं? मूड खराब है, चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, चलेंगे बिग चिल और पूरा जंक फूड खा लेंगे। हाँ, अरे आप जो एक मील पर खर्च कर रहे हैं, यू गो टू हाई एंड रेस्टोरेंट एनसीआर, यू आर एटलीस्ट स्पेंडिंग 2-3,000 ऑन वन मील। ये तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है। योगा क्लासेस आर बीइंग ऑफर्ड एट पीनट्स, यू नो। जॉइन अ योगा क्लास, अपने लिए वो समय निकालिए, 1 घंटा निकालिए, सुबह योग करिए प्रैक्टिस। और योग केवल आपकी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं, मेंटल बॉडी, इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे तो आपके मन में इच्छा ही नहीं उठेगी। आपका मूड जरूर खराब होगा, हो सकता है आपके सामने वाले सबऑर्डिनेट्स जब काम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर आता है कि अरे व्हाई इज ही नॉट वर्किंग, या जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप इशू है, मूड जरूर खराब होगा, लेकिन यू विल गेट अ वे थ्रू इट। जैसे स्टार्टिंग में बोला ना कि हम गिल्टी फील करेंगे, बट यू विल गेट अ वे थ्रू इट, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू विल टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि should I actually go out or should I go out for a run, should I go out for a swim, should I do yoga for myself, है ना। मेरा मूड खराब है, why can't I do सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार करिए, पसीना आएगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स आएंगे, यू विल फील अमेजिंग। आज हुआ ना, पसीने आए एंड शवासन में लेटे लेटे आपको कितना आनंद आ रहा था, है ना। यू आर एक्चुअली, योर बॉडी वाज स्माइलिंग, ऑल द सेल्स वर थैंकिंग यू। सो टेक अ स्टेप लाइक दैट, टेक अ हेल्दी स्टेप। और एक और चीज कि जो हमारी डिस्कशंस होते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इट इज गुड टू हैव डिस्कशंस ऑन रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड मतलब गॉसिपिंग करना भी इट्स ओके, बट it is very important to bring in discussion about health. मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो आपकी कॉन्वर्सेशंस हैं, bring it around health, कि हम योग को अपने लाइफ में कैसे लेकर आए। bring it, you know, make it a culture, make it like a hep thing happening, कि हाँ मैंने आज योगा किया, आज मैं गई, मैं दौड़ के आई, है ना। this is a thing to feel proud about. discuss with your friends, motivate them, मोटिवेट, ये वाले डिस्कशंस होने चाहिए। जो हेल्दी लाइफ है, क्या हमें नींद कैसे अच्छे लेके आए, अरे बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम रात में जल्दी नहीं सो पा रहे हैं, तो क्या करें ऐसा कि जल्दी सोएं, तो 10 बजे सोएं, सुबह उठें और सुबह अपने लिए टाइम निकालें कि हम कुछ सात्विक एक्टिविटी करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। सो टाइम मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करें, हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करें। सो या आई थिंक आई हैव सेड, कहने को तो बहुत कुछ है, कहती रहूंगी तो बहुत समय ले लूंगी। So already 8:38. Yeah, already 8:38. We Yeah. should, yeah. So please join in for the 5 days free sessions that I am offering. I'll be Okay. really happy to have you online. So thanks to all of you for joining today's session. Arunima, thank you so much for supporting us for this yoga session. It was a wonderful session, very inspirational session, and let's see if we can have more sessions in the future. On behalf of the association, big thanks to you. एक रिक्वेस्ट करनी है सभी से, क्या सेशन खत्म हो रहा है, क्या हम प्यारी सी अपने चेहरे पे मुस्कान दिखाकर एंड कर सकते हैं? That's true, that's true. Please have a screenshot. Everybody should open their camera. Contract. Please switch on your cameras. प्यारी सी मुस्कान दिखाएं Please, अपनी। Ashish, please, Kapil. Please switch on your cameras. Sushma. Sejal. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all of you for joining in. I hope, wish you best of health, physical, mental, emotional, spiritual. May you reach the best version of yourselves. I wish that I can support you. I'll be able to support you. I'll be really happy to have you along with me on this yoga Hello, journey. please open your camera. Yeah, that's nice. Okay, so I'll take a screenshot. Can you all join our hands in Namaste?
with a big smile on your face. Thank you so much. I'm Ashish, holding the mobile. Okay. Yeah. Namaste. thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Thank you all.